Hello everyone, this is Sir Farhan. Guys, let's start uh, February, March 2021, variance 52, paper 5, planning analysis and evaluation. Let's see what we have in this paper. Oh my goodness. Seems like this question paper is related to displacement and enthalpy. बिकॉज एग्जामिनर ने आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है और एंथैल्पी भी दी हुई है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस पेपर. Zinc, zinc metal, my goodness. Zinc metal reacts with aqueous copper to sulfate. That's called redox reaction, guys, because in this case zinc is oxidized, and obviously if it is oxidized it loses electron, and copper ions gets reduced, meaning they will gain electron. Okay, which is why it is a redox reaction. And this redox reaction is also called displacement reaction because zinc is more reactive than copper, so वो उसको displace, तो वो copper ions को displace कर सकता है from its solid solution. That's what we have done in O levels as well. That's what we have done in AS and A2 as well. Okay, the enthalpy change of this reaction delta H can be determined by adding excess zinc powder. Oh my goodness, the zinc powder has to be in excess. इसका मतलब ये आपका limiting reactor नहीं है, इसकी वजह से मैं एंथैल्पी डिटरमिन नहीं करूंगा. दैट इंडिकेट्स कि जो आपका कॉपर सल्फेट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया है, और जो एंथैल्पी चेंज मैं कैलकुलेट करूंगा वो कॉपर सल्फेट की वजह से कैलकुलेट करूंगा क्योंकि उसी की चेंजेस आएंगी. ठीक है, ऑलराइट. नाउ सरप्राइजिंगली वी हैव 0.5 mole per dm cube aqueous copper to sulfate. Temperature of 25 cm cube of 0.5 mole per dm cube copper to sulfate. Guys, remember you have volume and concentration of copper to sulfate, which means इन दोनों values को use करके मैं आगे moles find out कर सकता हूँ. Anyhow, let's move on to the next part of this. Is recorded for 3 minutes. Okay, after this at 4 minutes 3 gram and excess of zinc powder is added. Okay, ये बहुत important है कि 3 मिनट्स तक आपने रिकॉर्ड किया है टेम्परेचर को, बट आफ्टर 3 मिनट्स जब 4th मिनट स्टार्ट हुआ तो आपने 3 ग्राम जिंक पाउडर जो है वो ऐड किया इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और उस मिक्सचर को आपने कंटिन्यूसली स्टर किया. व्हाई आर वी स्टरिंग कंटिन्यूसली? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एंथैल्पी के प्रैक्टिकल में हम जब भी स्टर करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट के लिए करते हैं. फॉर यूनिफॉर्म distribution of heat. Okay, now the next is the temperature is recorded at times shown in the table. Okay, again जो 4th minute है वो missing है आपका. This 4th minute is missing and I think हमें यही determine करना होगा. आगे चलते हैं. Use the results table to deduce the graduation on the thermometer that is used to record these temperature readings. अच्छा देखें, यहाँ पर भी 0.5, 0.5, 0.5, यहाँ पर भी 0.5, 0.5, राइट. तो इसका मतलब जो सिंगल रीडिंग एरर है वो 0.5 है. सिंगल रीडिंग एरर कितना हो जाएगा? देयर इज नो स्पेस हियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल error in a reading is going to be plus minus 0.5 degree Celsius, right? So अगर single reading का error 0.5 है तो जाहिर सी बात है जो graduation होंगी वो obviously आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस की होंगी, तभी तो सिंगल रीडिंग एरर जो है वो 1 उसकी आ जाएगी. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
graduation lines represents 1 degree Celsius because error in single reading is plus minus 0.5 degrees Celsius. Okay. Draw a label diagram of the apparatus setup at 1 minute. Okay. 1 मिनट के ऊपर जो apparatus सेटअप करना है तो इजी है बहुत. हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम प्लास्टिक कप ले लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन कप भी ले सकते हैं आप. सही है. बीकर और कप के दरमियान हम कॉट लैगिंग कर लेते हैं फॉर इंसुलेशन पर्पस. मैंने इंसुलेशन के लिए कलर कर दिया ताकि आपको याद रहे. एंड ऑब्वियसली हमने इसमें एक सोल्यूशन भी लिया हुआ है, हमने वो सोल्यूशन यहाँ पर रखा है. एंड ऑब्वियसली उस सोल्यूशन के अंदर मैंने थर्मामीटर को भी इंजेक्ट किया हुआ है. तो ये मेरा थर्मामीटर हो गया जिससे मैं टेम्परेचर को मेजर करूँ. ओके, एंड आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ओके, ऑलराइट. तो ये मेरा थर्मामीटर हो गया. So this is going to be my thermometer and it is used to measure the temperature of the solution obviously. ये मेरा प्लास्टिक कप है, ये पॉलीस्टाइरीन कप है. Why are we using polystyrene cups? Because it absorbs negligible amount of heat. ये बीकर है मेरे पास, ठीक है, सपोर्ट मीडियम है. ये लैगिंग है और लैगिंग हम क्यों यूज करें? टू प्रिवेंट हीट लॉस. ओके, फॉर इंसुलेशन पर्पस. कॉटन वूल होता है बेसिकली, ये हम पहले भी बता चुके हैं थ्योरी पढ़ाते हुए. एंड ऑब्वियसली ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इसमें 25 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर dm³ है. तो ये हो जाएगा 25.0 cm³ ऑफ 0.500 मोल पर dm³ copper sulfate solution. Okay, I hope you get the point. समझ में आया होगा आपको. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज प्लॉट a graph of temperature y-axis against time on x-axis. Use cross to plot each data point. Draw a line of best fit during cooling. Extrapolate यानी आपने ग्राफ को एक्सटेंड करना है. कूलिंग कर्व बैक टू 4 मिनट्स. ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने उसको कूलिंग कर्व को एक्सट्रापोलेट करना है बैक टू 4 मिनट्स. डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर चेंज कह रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा टी कह रहे हैं वो आपसे, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन. ऑलराइट, तो मेरे पास ये ग्राफ था, मेरे पास ये वैल्यूज थी, मैंने इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर प्लॉट किया. मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि जब मैं इस ग्राफ को बना रहा था मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई इन अ वे कि मुझे ये क्लिक नहीं हो रहा था कि उन्होंने कहा हुआ है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जबकि यहाँ पर जो है वो कर्व ऑफ बेस्ट फिट आ रहा था. तो मैंने कर्व ऑफ बेस्ट फिट को ऑप्ट किया बिकॉज लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसी भी अंदाज से यहाँ मैनेज ही नहीं हो रहा था. सही है ना. लुक, अगर मैं ओह माय गुडनेस, लुक अगर मैं इसको इस तरह से लूँ तो ये सारे पॉइंट्स मैनेज नहीं हो रहे थे. सही है, मैं इसको इस तरह से लूँ तो भी मैनेज नहीं हो रहा था. तो मुझे ये हुआ कि ओके, ये बनाकर देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ओके, तो टेम्परेचर इनिशियली आपके पास यहाँ पर था, थोड़ा सा राइज हुआ और फिर वो इक्विलिब्रियम के अंदर चला गया. हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया और बैक टू 4 मिनट्स है तो हमने 4 मिनट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करी. और ये जो आपके पास स्केच था इसको भी हमने हाथ से बनाकर एक्स्ट्रापोलेट किया. ओके, और ये है मेरे पास
41, 42, 42.5 है मेरे पास, तो दिस इज गोइंग टू बी 42.5 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑब्वियसली जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ से मेजर करूंगा तो ये 19.5 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ से टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है तो मैं 42.5 माइनस 19.5 लूंगा, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा, टेम्परेचर चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, तो इट्स गोइंग टू बी 23.0 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। एंड ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है वो हमारा नॉर्मलस पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये कर्व ऑफ बेस्ट फिट में से कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। use the formula delta H equals to minus mc delta T to determine the enthalpy change of the reaction in kilojoules per mole। मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि अगर आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली वो इन 1 मोल में कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। याद रखिएगा कि हमने वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट कितना यूज किया था, 25 cm3 इफ यू रिमेंबर। तो अगर हमने 25.0 cm3 यूज किया था, then according to this statement it is going to be 25.0 gram। okay, I hope it makes sense to you। similarly हमने टेम्परेचर चेंज निकाला था डेल्टा टी 23.0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने कहा हुआ है कि हम इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 केल्विन। तो ये A1 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैंने शेयर की आपके साथ। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला है डेल्टा क्यू, दैट इज हीट चेंज, mc डेल्टा टी। तो मेरे पास मास ऑफ कॉपर सल्फेट है 25। मैं जिंक नहीं लूंगा क्योंकि जिंक एक्सेस अमाउंट के अंदर है। मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जब एक्सेस अमाउंट होता है तो हम उसको यूज नहीं करते, हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से कैलकुलेशन करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 4.18, टेम्परेचर चेंज मेरे पास 23.0 आया है, मैंने उसको लिया है। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी 2403.5 जूल्स। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा क्यू डिटरमाइन करूंगा तो ये हो जाएगा 2.4035 kilojoules। okay, now in the second step I need to find out the moles of copper sulfate। तो मेरे पास वॉल्यूम हो जाएगा 25.0, मेरे पास कंसंट्रेशन है 0.500। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आ जाएंगे which is 0.0125 मोल्स। राइट, सो हम सब जानते हैं कि इतने मोल्स में हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, तो 1 मोल में कितनी एनर्जी चाहिए, तो 1 मोल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 0.0125 moles of copper to sulfate gives you how much energy? 2.4035 kilojoules। okay, so if you have 1 mole of copper sulfate, obviously हमारे पास एनर्जी कितनी होगी? सो जनाब हमारे पास एनर्जी हो जाएगी -192.28। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा -192.3 kilojoules per mole। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास है ओके, heat loss is a major source of error in the results of this experiment। okay, heat loss हो सकता है। कहाँ से heat loss होगा? heat loss जो है, मैंने यहाँ तो लैगिंग कर ली तो यहाँ से नहीं होगा, लेकिन टॉप से हो सकता है heat loss। तो heat loss को प्रिवेंट करने के लिए मैं यहाँ पर लिड लगा दूँ, heat loss यहाँ से भी प्रिवेंट हो जाएगा, फिर सही है ना। बट heat loss होता है, ये बात हम जानते हैं। तो कह रहे हैं वो, suggest how the following changes would affect the amount of heat loss if at all। amount of heat loss मालूम करवा रहे हैं वो आपसे। ओके, एक्सप्लेन योर आंसर इन ईच केस, एक्सप्लेन भी करना है।
ठीक है, तो मास ऑफ जिंक इज डबल्ड। अब जाहिर सी बात है जिंक जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, मैं उसका मास डबल करूं या क्वाड्रबल करूं, इस डेल्टा एच की वैल्यू के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी हीट लॉस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट के अंदर, और एक्सेस अमाउंट पे हम कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते, हम डिस्कशन नहीं करते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो इफेक्ट, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जिंक इज एन एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ so using more zinc has no effect on heat loss, therefore no change in heat loss. Okay, now the next is concentration of 25 cm cube of aqueous copper sulfate is doubled, amount of zinc used is still in excess. भाई जिंक जो है वो स्टिल एक्सेस के अंदर है और आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो। जिंक is still in excess and doubling the concentration of copper sulfate doubles the moles of copper sulfate, hence double amount of heat energy released. Okay, तो हम यहाँ लिखेंगे हीट लॉस ज्यादा होगा, मोर हीट लॉस। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस कॉपर सल्फेट इज डबल्ड। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया, लेकिन जिंक अभी भी एक्सेस में है। पहले कंसंट्रेशन डबल करी, अब वॉल्यूम डबल कर रहा हूँ, लेकिन दोनों केसेस के अंदर जिंक एक्सेस में है। तो जिंक जो है वो अभी भी एक्सेस अमाउंट के अंदर है। ओके, जिंक इज स्टिल इन एक्सेस। ओके, doubling the volume, वॉल्यूम डबल करने से doubling the volume has no effect on the amount of heat loss because heat loss जो है, बस मेरे ख्याल से इतना काफी है 1 मार्क के लिए। वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोल्स चेंज हो रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू भी चेंज होगी एंथैल्पी की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो इफेक्ट या नो चेंज, नो इफेक्ट on heat loss. Okay, that's the end of our question number 1.
let's start with question number 2. Okay, my goodness. Okay, ethane dioic acid is a white crystalline solid. तो पहली तो बात ये कि ये solid है room temperature, और दूसरी बात ये कि ethane dioic acid is basically एक basic acid है, ठीक है. Basic acid, it obviously it donates two hydrogen ions in aqueous medium. Okay, it donates two hydrogen ions in aqueous medium. अच्छा, आपको मैंने इथेन डाइक एसिड पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया है, ठीक है ना. ये उसका स्ट्रक्चर होता है, सही है. तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयोनाइज होता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन आयोनाइज होता है, व्हिच इज व्हाई इट इज अ डाइबेसिक एसिड. आगे चलते हैं. एक्सेस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एक्सेस अमाउंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये याद रखना. is added to dilute ethane dioic acid. Full neutralization occurs and potassium ethane diode forms. तो ये आपका salt हो गया, and obviously ये neutral salt है because it doesn't have any hydrogen atom. Okay. वो कह रहे हैं if small amount of potassium hydroxide is added, partial neutralization takes place. Partial neutralization का मतलब ये होगा कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पे पोटेशियम आ जाएगा, ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. और वो कह भी रहे हैं नॉट ऑल हाइड्रोजन आयंस इन द एसिड आर रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम आयंस. इंस्टेड एन एसिड सॉल्ट इज फॉर्म. अभी तो हमने यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बनाया था ना, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था. तो जब आप पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, यानी सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक तो स्टिल इंटैक्ट रहेगा. उस एक हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम एसिडिक सॉल्ट का नाम देंगे, और उस एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मूला एग्जामिनर ने ये दिया है. तो इस हाइड्रोजन की वजह से हम इसको एसिडिक सॉल्ट कह रहे हैं. ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है, इसको हम हाइड्रेटेड एसिडिक सॉल्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल है. अलर्ट रहना. माय गुडनेस. the letters A, B and C represents the ratio of the numbers of species present in the compound. Okay, and may not necessarily be whole number. तो एक बात तो कंफर्म हो गई यहाँ से कि भाई A, B, C होल नंबर नहीं हो सकते, बट यहाँ पर एग्जामिनर ने D को रिप्रेजेंट नहीं किया. ये D लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये D जो है वो होल नंबर में होना चाहिए. और वाटर क्रिस्टलाइजेशन कॉमन सेंस ये कहता है कि होल नंबर में ही होगी. 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, एनी नंबर बट इन होल नंबर. सही है. ये बात बहुत ट्रिकी है. तो उसने इसको मेंशन किया, इसको मेंशन किया, इसको मेंशन किया कि ये होल नंबर में हो सकते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं किया उसने. इसका मतलब इट हैज टू बी इन द होल नंबर. ओके, आगे बढ़ते हैं. वो कह रहे हैं आपसे the relative number of molecules associated with one formula of the compound is represented by D. All right, इसको हम water crystallization कहते हैं. A student attempted to determine the value of A, B, C and D in the sample of an acid salt. This quite challenging. It's not going to be easy. It's not an easy task. I must say this. Anyhow, आगे चलते हैं. वो कह रहे हैं आपसे कि ओके, वो आपसे क्या कह रहे हैं इसमें. द स्टूडेंट वांट्स टू मेक 250 cm क्यूब. ओके, इसका मतलब यू नीड अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 250 cm क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड सॉल्ट, सॉल्यूशन ए. इस एसिड सॉल्ट को इसने क्या नाम दे दिया, सॉल्यूशन ए. वो कह रहे हैं द स्टूडेंट्स एड्स 1.89 ग्राम ऑफ एसिड सॉल्ट इनटू 100 cm क्यूब ऑफ बीकर. यानी आपने इस मास को इस बीकर में ऑलरेडी प्लेस कर दिया है. वो कह रहे हैं डिस्क्राइब नेक्स्ट स्टेप्स द स्टूडेंट शुड टेक टू मेक सॉल्यूशन ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 1.8 gram of this acidic salt. Give the name and capacity of the apparatus. Students should ensure the volume is exactly 250 cm cube. Okay, तो प्लान है ये बेसिकली. तो एक बात तो तय होगी कि भाई ये मास इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है,
तो यकीनन मैं इस बीकर के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर ऐड करूंगा ताकि ये मास यानी ये सॉलिड डिसॉल्व हो जाए। सही है। सो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ इसको, कोशिश करके ऐड 50 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर। बीकर क्योंकि 100 cm क्यूब का है और मुझे एक सॉलिड को डिसॉल्व करना है तो मैं 50 cm क्यूब वाटर ले लूंगा, हाफ बीकर भर लूंगा ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। अगर मैं 100 cm क्यूब बीकर में 100 cm क्यूब वाटर ले लूंगा तो ऑब्वियसली फिर वाटर जब वो स्टर करते हुए बाहर आकर गिरना शुरू हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तो वी नीड टू अवॉइड दैट, व्हिच इज व्हाई आई एम यूजिंग 50 cm क्यूब इंस्टेड ऑफ 100 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर। तो add 50 cm क्यूब डिस्टिल वाटर into a beaker. Okay, stir the mixture. To dissolve the solid. To dissolve solid of hydrated acid salt. और हाइड्रेटेड एसिड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास है KaHbC2O4C.DH2O। ओके, जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे 250 cm की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन in a 250 cm cube वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस बीकर को वॉश करेंगे और उस वॉशिंग को भी इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में शामिल करेंगे। वॉश द बीकर with distilled water and transfer this washing into the volumetric flask। ठीक है, उसके बाद हम रिमेनिंग वॉल्यूम जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा उसको टॉप अप करेंगे अगेन विद डिस्टिल्ड वाटर बट ड्रॉप वाइज। टॉप अप द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क dropwise with distilled water ठीक है, ये हमसे कह रहे थे ना, and describe how the student should ensure the volume is exactly this। तो वॉल्यूम एग्जैक्टली करने के लिए डिस्टिल टॉप अप जो है वो आप ड्रॉप वाइज करोगे। ठीक है, इसलिए लिखा है ये। तो टॉप अप हो जाएगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, तो उसके बाद हम फ्लास्क को स्टॉपर लगाएंगे। stopper the flask and shake well and shake it to mix well। ठीक है, I think for 4 marks it's more than enough। मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। Okay, if you have any question let me know। Oh my goodness। Okay। Quite challenging now। Ethane dietines reacts with manganate 7 ions in acidic condition as shown। और हम सब जानते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ना इन दोनों का, ये रीडॉक्स रिएक्शन है। इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं
ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हमने आपको A1 केमिस्ट्री में भी पढ़ाया, A2 में भी, और हम जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, which is why it is a redox reaction. On top of that, ये भी याद रखना कि इन दोनों के दरमियान रेशो 5:2 का होता है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5:2 का रेशो, ठीक है। मैग्नेट आयंस आर वेरी डीप पर्पल इन कलर, ओके, तो वो इन ऑल अदर स्पीशीज अपीयर्स कलरलेस, ये भी कलरलेस, कलरलेस, ये पर्पल है। तो एक बात और तय होगी, क्योंकि ये डीप इन पर्पल है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टाइट्रेशन करेंगे, या टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन है ना, तो जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो अपर मेनिस्कस रीड करेंगे, बिकॉज तमाम कलरलेस सॉल्यूशन के लिए अपर मेनिस्कस रीड करना जरूरी होता है फॉर ऑल colorless solution. Oops. For all colored solution. For all colored solution, read the upper meniscus. Colorless solution के लिए lower meniscus होता है, ये हमने O levels में पढ़ाई हैं बातें, आपको आपने पढ़ी हैं obviously. Read the upper meniscus. What is meniscus? The curved surface of the liquid is meniscus. And obviously एक चीज और भी है यहाँ पर, ये तो बात है, लेकिन जब अपर मेनिस्कस रीड करते हैं और कलर्ड सॉल्यूशन होता है, इंटेंस कलर सॉल्यूशन होता है, तो हम कभी भी ब्यूरेट रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं करते, हम 0 से कुछ नीचे स्टार्ट करते हैं, यानी 1 cm³ या 0.1 cm³ या 0.5 cm³ से स्टार्ट करते हैं। नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0, नेवर रीड इट और स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि आप रीड नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा सा वॉल्यूम कम लेकर फिर रीड करते हैं, हमारे लिए रीड करना आसान हो जाता है। सही है, आगे चलते हैं। The reaction takes place at an above temperature of 70 degrees Celsius. तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। To maintain the temperature, obviously हम वाटर बाथ यूज कर रहे होंगे। To maintain this temperature, वाटर बाथ यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, you can use even electric heater ताकि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर लें 70 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट इज redox titration हो रही है, उसके बाद स्टूडेंट rinsing and fill a burette with this. rinsing बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, अगर मैं rinsing करूंगा तो मैं पूरी burette को रिंस करूंगा मैग्नेट आयंस के सॉल्यूशन से, पूरा पास करूंगा मैं सॉल्यूशन को इसकी नोजल से, राइट। और रिंसिंग जरूरी होती है, रिंसिंग इज यूज्ड टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स, used to get the accurate results, used to get the accurate results. rinsing नहीं करेंगे तो क्या हो भाई, जाहिर सी बात है, ब्यूरेट के अंदर कुछ ना कुछ वाटर होगा, वो वाटर इस कंसंट्रेशन को चेंज करेगा तो टाइटर वैल्यू भी चेंज होगी, तो ऑब्वियसली आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट यूजेस पिपेट टू ट्रांसफर 25 cm³ of solution A into the conical flask. तो आप जानते हैं एक एग्जैक्ट वॉल्यूम आपको चाहिए, एक फिक्स्ड वॉल्यूम चाहिए, एक्यूरेट वॉल्यूम है, तो फॉर एक्यूरेसी वी नीड पिपेट, सही है। और सॉल्यूशन है आपको पता है ना क्या है, C2O42 नेगेटिव हैज टू बी इन द कॉनिकल फ्लास्क, और C2O4 का कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये भी याद रखना, सही है। The student may add 20 cm³ of an excess of 0.5 mole per dm³ H2SO4 in the conical flask. अब तुम सब जानते हो कि भाई एग्जामिनर ने तुम्हें एक्सेस H2SO4 20 cm³ बोला है, तो जाहिर सी बात है एक्सेस H2SO4 मेजर करने के लिए ऑब्वियसली तुम मेजरिंग सिलेंडर लोगे, इसलिए क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो आपको एक्यूरेट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है।
और जाहिर सी बात है उसने यहाँ लिखा भी है 20 cm क्यूब, इसका मतलब इट इज नॉट एन एक्यूरेट वॉल्यूम. Since it is in excess, we can use measuring cylinder. The conical flask is heated until the temperature of about 80 degrees Celsius is reached. The student adds magnate ions from the burette until an end point is reached. Okay. तो पहली तो बात ये हो गई कि भाई आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन था बिफोर एक्सपेरिमेंट इन द कॉनिकल फ्लास्क, और जब आप KMnO4 से टाइट्रेट करेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क का कलर क्या हो जाएगा? पेल पिंक और जस्ट पिंक. तो पेल पिंक आफ्टर एक्सपेरिमेंट. सही. ऑलराइट. तो एंड पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी कलरलेस टू पेल पिंक या कलरलेस टू पिंक. ओके. ओके. The student determines the average titer to be 24.40 cm cube. तो अगर उसने 24.40 cm cube बोला है, इसका मतलब उसने बेस्ट टाइट्रेशन टाइट्रेशन 1 और टाइट्रेशन 3 लिए, इन दोनों का एवरेज आउट किया है. सही है. When emptying the pipette in step 2, the student touches the surface of the solution in the flask with the tip of the pipette. Suggest why the student does. I think so. आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके जब आप पिपेट से सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं तो पिपेट की जो टिप होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन रह जाता है. उस सॉल्यूशन को उस टिप से निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप हल्का सा उसको टच करते हैं कॉनिकल फ्लास्क से, ताकि वो सॉल्यूशन जो वॉल्यूम रह गया रिमेनिंग वो उस टिप से बाहर आ जाए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. सो अक्सर आपने देखा होगा हम ये करते हैं. और ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं so to get all the volume, to get all the volume of solution A can transfer in the conical flask for accurate measurements. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट पीस ऑफ apparatus to measure H2SO4 in step 3. तो मैंने आपको कहा था मेजरिंग सिलेंडर है. सही है. हम यहाँ पर लिख देते हैं मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि हम एक फिक्स्ड वॉल्यूम एक मेजरिंग सिलेंडर, और हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्यूरेट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, क्योंकि H2SO4 एक्सेस अमाउंट के अंदर है. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट स्टार्ट्स ईच टाइट्रेशन विद एन इनिशियल burette रीडिंग 0.1 cm क्यूब rather than the usual 0 cm क्यूब. तो ये तो मैंने आपको बताया अभी कि हम हमेशा कलर्ड सॉल्यूशन के लिए कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वो हम फिर अपर मेनिस्कस रीड करने के काबिल नहीं बनते. सही है ना. हमसे अपर मेनिस्कस रीड नहीं होगा. तो आप बताइए KMnO4 has an intense purple color, has an intense purple color, so we cannot read the value, so we cannot read the upper meniscus properly. Hence, initial burette reading is 0.10 cm cube. Okay. Now the next is what is mean by the term concordant readings. Consistent readings को कहते हैं. ये देखो
ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स हैं, राइट। और ए लेवल केमिस्ट्री में जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स होती हैं उसमें डिफरेंस 0.05 cm³ का होना चाहिए। ओके, डिफरेंस नीड्स टू बी इन 0.05 cm³, क्योंकि 0.05 जो है वो एक सिंगल रीडिंग का एरर होता है। ऑलराइट, यानी आप कह सकते हो कि 0.1 cm³ का। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसिस्टेंट रीडिंग्स हो आपके पास within ±0.1 cm³ रेंज। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सिंगल एरर रीडिंग होता है वो 0.05 cm³ होता है। तो जो रीडिंग होती है वो 0.1 cm³ की रेंज में होनी चाहिए इन AS एंड A2 केमिस्ट्री। ओके, हम हमेशा इसी तरह से डिस्कशन करते हैं आपके साथ प्रैक्टिकल्स में भी, पेपर 3 में भी। Let's see what we have next. Yeah. State the change of color seen in the mixture, the conical flask at the end point. या conical flask कह रहे हैं, तो conical flask में इनिशियली कलर क्या होगा? कलरलेस, क्योंकि इथेन डायोएटाइंस आपके पास conical flask में which has a colorless solution। और जब आप उसको टाइट्रेट करेंगे तो या तो ये पेल पिंक होगा या जस्ट पिंक। तो मैंने दोनों लिख दिए ताकि मेरा आंसर सेफ रहे। ठीक है, कलरलेस टू पिंक बोलो या कलरलेस टू पेल पिंक, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। माय गुडनेस, ओके, कैलकुलेशन आ गई और 3 मार्क्स की कैलकुलेशन है। माय गुडनेस, एनी हाउ डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 नेगेटिव आयंस इन 250 cm³ ऑफ सॉल्यूशन A। ओके, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। ऑलराइट, सॉल्यूशन A जो है ना वो आपके पास ये, यानी एसिडिक हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो मुझे एक्चुअली KMnO4 की कंसंट्रेशन गिवन है और KMnO4 का वॉल्यूम गिवन है, तो इन दोनों को यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं मोल्स ऑफ KMnO4 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 0.02 एंड 24.4। ओके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा मोल्स ऑफ MnO4। मेरे पास वॉल्यूम है 24.40, मेरे पास कंसंट्रेशन है 0.0200। मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास गाइस मोल्स आ जाएंगे 4.88 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ओके, एंड द सेकेंड स्टेप, इक्वेशन गिवन थी और मैंने कहा था कि उस इक्वेशन के अंदर मैग्नेट का और इथेन डायोएट आयंस का मोलर रेशियो इंपॉर्टेंट है, 2:5। तो अगर आपने 4.88 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ C2O42 नेगेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, कितने हो जाएंगे इन 25.0 cm³। कैसे पता चला 25.0 cm³ है? क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने 25 cm³ को प्रिपेट आउट किया था, राइट? सही है। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि 250 cm³ की बात कर रहा है, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 25.0 cm³ of C2O42 negative gives you 1.22 into 10⁻⁻3 moles. Now, if we have 250 cm³, 250.0 guys, 250.0 cm³, what is going to be the answer? तो 10 times dilution हो जाएगी, तो ये हो जाएगा moles of C2O42 negative is going to be 0.0122 moles और 3 सिक पिग में आंसर देना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा 0.0122 मोल्स। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी और एक चीज बता दूं आपको, किया क्या था मैंने सोचा क्या है, मैंने सोचा ये है कि मेरे पास एक
डिश है, उस डिश में यकीनन मेरे पास एसिडिक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये मेरे पास हाइड्रेटेड एसिडिक सॉल्ट है, सही है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफर किया 250 cm क्यूब में, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अगर आपको याद हो, हमने इसको डिसॉल्व कर दिया था इसमें, ठीक है, ठीक है जनाब। तो 250 cm क्यूब सोल्यूशन ए लिया हमने यहाँ। अब फिर इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया, और वो कितना था हमारे पास 25.0 cm क्यूब। पहले मैंने इसमें कैलकुलेशन की, फिर मैं इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इस सब में हो क्या रहा है, इस सब में हो ये रहा है कि यहाँ पर मोल सेम है, सही, और यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे। ये पूरा सोच के फिर मैंने ये कैलकुलेशन किया, ओके। आगे चलते हैं। ओ माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस। The student then does an acid-base titration of solution A to determine the values of A, B in hydrated acidic salt. Suggest the name of the suitable reagent used in this titration. वो आपसे कह रहे हैं reagent, और उसके उसके अलावा वो कह रहे हैं नेम, तो फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अब जाहिर सी बात है, ये जो सॉल्ट है आपके पास, इस सॉल्ट में से ये सेगमेंट कहाँ से आ रहा होगा, एसिड से, और ये कहाँ से आ रहा होगा, एल्कली से। तो KOH इज बेसिकली द एल्कली जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में इन्वॉल्व हुआ है, तो KOH का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट, the student finds the concentration of hydrogen ion in solution A is this mole per dm cube। अच्छा, पहली तो बात ये कि जो आपके पास solution A है, इसको हमने लिया हुआ कितना था, 250 cm क्यूब, क्वेश्चन में गिवन है, सही है। और उस 250 cm क्यूब में ये एसिड की कंसंट्रेशन है, यानी H प्लस आइन की। वो कह रहे हैं यूज this value and your answer to B6 to determine the ratio of C to B to 2 decimal places. My goodness, quite challenging guys, quite challenging, but कोई मसला नहीं है। Oh my goodness, oof. और उसके बाद वो कह रहे हैं then deduce the value of A in this salt to 2 decimal places। पहले C निकालो, फिर B निकालो, दोनों का रेशियो निकालने के बाद फिर A भी निकालो। Oh God, और ये 2 डेसिमल प्लेस। सो 2 डेसिमल प्लेस पे सारी वर्किंग करनी है। एक बात तो ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, 2 डेसिमल प्लेस की वर्किंग करनी है। पहले सी और बी का रेशियो निकलेगा, उसके बाद आप उसको यूज करके ए की वैल्यू को डिड्यूस करोगे। अच्छा जनाब, इतना चैलेंजिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो 1000 cm क्यूब में इतने मोल्स हैं, तो अगर 250 cm क्यूब सॉल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, ओके। So 1000 cm cube of hydrogen ion contains 6.10 into 10 to the power minus 2 moles, right? Now 250 cm cube solution A था हमारे पास, उसमें मोल्स कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस के। So moles of hydrogen ions मेरे पास आ रहे हैं 0.01525 moles, right? Now in the second step, मैं जानता हूं कि मैंने मोल्स ऑफ C2O4 कितने निकाले थे, 0.0122। से मोल्स ऑफ C2O4, 2 माइनस भी बता देता हूँ, 0.0122 मोल्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मुझे C और B देखना है। गाइस ये C है
और ये बी है, इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन आयन और इथेन डायोएटाइंस इन दोनों का रेशो देखना है। ओके, तो मेरा थर्ड स्टेप होगा रेशो बिटवीन इथेन डायोएटाइंस एंड हाइड्रोजन आयंस। याद रखिएगा इथेन डायोएटाइंस को उसने सी से रिप्रेजेंट किया है और इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास दोनों के मोल्स हैं, ये हाइड्रोजन आयन के मोल्स हैं, ये इथेन डायोएटाइंस के मोल्स हैं, तो ये हो जाएगा 0.0525 और ये हो जाएगा पॉइंट oops 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 no 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 be careful, ये हो जाएगा 0.0122 मोल्स और ये हो जाएगा 0.01525 मोल्स, राइट। सो हम क्या करेंगे, जो लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट वैल्यू, इसी से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0.0122, तो ये हो जाएगा 1:1.25। इसका मतलब आपके पास C की वैल्यू कितनी आ गई 1 और B की वैल्यू कितनी आ गई 1.25। तो रेशो 1 रेशो यानी C कितना है मेरे पास 1, ये आ गया, और B कितना है मेरे पास 1.25, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1:1.25। सो मैंने C और B का रेशो 2 डेसिमल प्लेस में डिटरमिन कर लिया। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। Oh my goodness. Okay. Mm-hmm. Okay. Let me, uh, frame the whole thing. मेरे पास C और B आ गया, तो अब मैं उसके थ्रू A निकाल सकता हूँ। अगर मैं उसके थ्रू A निकाल सकता हूँ तो क्या होगा? ओके ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट, मेक सेंस। तो इथेन डायोइक एसिड से मेरे पास ये सॉल्ट बना था, और इथेन डायोइक एसिड से ये सॉल्ट बना था, तो इथेन डायोइक एसिड था मेरे पास H2C2O4, और उससे सॉल्ट क्या बना है, सॉल्ट ये वाला बना है, ठीक है। और अब इस सॉल्ट में मेरे पास H आ गया है, C2O4 आ गया, यानी मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई है और ये वैल्यू भी आ गई है, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके ओके ओके, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, H और H का जो B है उसका आंसर क्या है 1.25, ये लिखा मैंने। फिर आपके पास C2O4 है, C2O4 जो है वो C है, C मेरे पास 1 है, और पोटेशियम जो है वो मेरे पास A है, वो मुझे नहीं मालूम, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब आप नोट करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 1.25, तो इसका मतलब रेशियो क्या है यहाँ पर 2:1.25। तो अगर मुझे A कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा A, तो नहीं, ये हो जाएगा 2 = 1.25 प्लस A। आई होप इट मेक सेंस टू यू। तो अगर मुझे यहाँ से A निकालना है तो ये हो जाएगा 2 - 1.25, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75। ओके, 2 डेसिमल प्लेस पे आ गया। तो देखें, जो B है होल नंबर, ओ सॉरी, उन्होंने कहा था हमें क्वेश्चन में, आई थिंक सो, यस, वो कह रहे हैं नंबर स्पीशीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड में नॉट नेसेसरीली बी होल नंबर। तो आपने नोट किया कि मेरे पास B और A दोनों डेसिमल्स में है, C जो है वो मेरे पास होल नंबर में आया है, एंड ऑब्वियसली D भी मेरे पास किस में आएगा, होल नंबर में ही आना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट्स में कभी भी नहीं होता। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, बट इट हैज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बट उसने मार्क्स दिए हैं आपको यहाँ पर, तो ठीक है, ठीक है, मार्क्स मिल रहे हैं तो ठीक है, बट दिस एरिया इज क्वाइट चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं होगा बच्चों के लिए। ओके, now let's move on to the next part of the question and let's see what we have in that. Let me think, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। इथेन डायोइक एसिड से ये सॉल्ट बनाया था मैंने, और इस इथेन डायोइक एसिड में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1.25 है, तो दोनों के दरमियान रेशियो हो गया 2:1.5, एंड ऑब्वियसली ये 1 एज इट इज है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 = 1.25 प्लस A + 1, तो ये बेसिकली यही एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है।
और गाइस मैंने ये वन शो नहीं किया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल कैलकुलेशन पे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। नहीं, नहीं, ये सही है, सही है, ठीक है। 0.75। ओ यस, मुझे एक्चुअली इसके थ्रू जो है ना एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, ओके, ठीक है गाइस, इट्स ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगेन कैलकुलेशन, माय गुडनेस, यूज योर आंसर टू B6 and C2। भैया B6 क्या है हमारे पास? B6 हमारे पास है मोल्स ऑफ C2O4 2 नेगेटिव आयंस। और क्या है हमारे पास? B6 क्या है भाई हमारे पास? मोल्स ऑफ C2O4 2 नेगेटिव। और C2 क्या है मेरे पास? C2 क्या है मेरे पास? C2 में मेरे पास ये रेशियोज हैं, सही है। C2, ओके, C2 रेशियोज हैं मेरे पास यहाँ पर, रेशियोज ऑफ B, C and A, okay. Other information given in the question, other information given, कौन सी information given है question के अंदर? और ओ यस, ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना मेरे पास, मैंने 1.89 ग्राम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को डिसॉल्व किया था, याद है? सो मैंने 1.89 ग्राम लिया था, हाँ। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्ट कितना है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेरे पास मास ऑफ हाइड्रेटेड एसिड सॉल्ट कितना है मेरे पास? एसिड सॉल्ट कितना है मेरे पास? 1.89 ग्राम, ओके। आगे चलते हैं। डिटरमिन, oops, wait, determine mass of 1 mole of hydrated salt। oh my goodness, तो वो हमसे इसका MR डिटरमिन करवा रहे हैं, ओके। we need to find out the MR, so we know the moles, we know the mass, we can find out the MR। चलें, यहाँ तक तो ये पार्ट 1 हो गया मेरा। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं? और hence determine the value of D to the nearest whole number। उसने क्या दिया है? nearest whole number के ऊपर आएगा आंसर, ठीक है, ओके। सो आप सब जानते हैं मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मेरा पहला स्टेप ये है कि मेरे पास ठीक है, मेरे पास ये है K और A की वैल्यू मेरे पास थी 0.75, फिर है मेरे पास H, इसकी वैल्यू थी 1.25, फिर है मेरे पास C2O4, इसकी वैल्यू थी मेरे पास 1.DH2O। अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक एथेनोएट इथेन डायोटाइंस हैं, तो मुझे C2O4 2 माइनस एक ही मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे सॉल्ट का रेशियो 1:1 का है, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्ट, 1 मोल ऑफ सॉल्ट गिव्स ओनली 1 मोल ऑफ इथेन डायोटाइन, बिकॉज इसमें है ही एक इथेन डायोटाइन, ओके। और इथेन डायोटाइन के मैंने मोल्स कितने निकाले थे पार्ट 6 में? 0.0122। तो अगर आपके पास यहाँ 0.0122 मोल्स हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितने हो जाएंगे? चलिए, मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड एसिड सॉल्ट कितने हो जाएंगे आपके पास? सेम हो जाएंगे, 0.0122। ऑलराइट, अब मुझे एक्चुअली मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट गिवन है, ये मोल्स आ गए, इन दोनों को यूज करके मैं एमआर कैलकुलेट कर सकता हूँ। रिलेटिव फॉर्मूला मास भी कहते हैं इसको,
तो अगर मुझे MR कैलकुलेट करना है तो मास मेरे पास है 1.89, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 0.0122 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 154.9 ग्राम। मैं इसको राउंड ऑफ करके 155 ग्राम ले लेता हूँ। तो 155 ग्राम इज बेसिकली इक्वल टू 1 मोल। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 155 ग्राम, 155 ग्राम। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, MR निकाल दिया। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि D भी निकाल। माय थर्ड स्टेप इज बेसिकली, मैं जानता हूं कि मेरे पास ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है एंड इट इज इक्वल्स टू दिस, सो पोटेशियम का AR होता है 39.1, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा उसको 0.75 से, प्लस हाइड्रोजन का AR होता है 1, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 1.25 से, प्लस C2O4 टोटल अगर आप निकालेंगे, इस पूरे टोटल का मास निकालेंगे तो 88 आएगा, और मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 से, डॉट DH2O, और H2O जो है उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 18 से, ठीक है, क्योंकि H2O का MR 18 होता है। तो इक्वल्स टू व्हाट, MR, और MR मेरे पास कितना है 155.9। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व कर लूं, इन सबको यहाँ तक, तो मेरे पास आंसर आएगा 118.575 प्लस 18D equals to MR is going to be 155। तो यहाँ से अगर मैं D की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास 155 माइनस 118.575 divided by 18, so it's going to be how much, 2.02। तो उन्होंने हमसे कहा था क्वेश्चन में कि नियरेस्ट होल नंबर पे लेना है, इसका मतलब मैं इसको 2.0 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, ठीक है 2 कर सकता हूँ, राइट। तो होल नंबर में आंसर आ गया। मैंने पहले भी कहा था कि ये होल नंबर में आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी डेसिमल्स में नहीं होती। ओके, अनदर वेरी चैलेंजिंग पार्ट आई मस्ट से, कि आसान नहीं होगा बच्चों के लिए ये सारी चीजें टैकल करना। These 3 parts are really really tough. A second student uses another method to determine D। अच्छा, ये D कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर ने स्टूडेंट ने एक और मेथड किया, और मेथड अडॉप्ट करने के लिए उसने क्या किया, crystals of the sample with known values of A, B and C are heated in a crucible to remove water molecule। Okay, इसको कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मैंने पहले भी पूरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर करवाया आपको, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे कंस्ट्रक्ट और रिजल्ट टेबल, यानी वो आपसे मेजरमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है, टू शो द रीडिंग्स दैट वुड नीड टू टेकन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो वो आपसे बेसिकली मेजरमेंट्स मांग रहे हैं गाइस। डी क्या चीज था ये भी पता होना चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है डी आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चले मैं मेजरमेंट्स शेयर करता हूं आपके साथ। होपफुली आपको प्रीवियस पेपर याद होगा, मैंने उसमें मेजरमेंट्स यानी रिजल्ट टेबल जिसको आप कहते हैं वो शेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मास बॉइलिंग ट्यूब, एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब का मास वेट करूंगा, मास ऑफ एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं हीट कर रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर रहा हूँ, तो टेस्ट ट्यूब में नहीं करूंगा, बॉइलिंग ट्यूब में करूंगा, ये आ जाएगा इन स्लैश ग्राम, ठीक है। उसके बाद मैं मास ऑफ बॉइलिंग ट्यूब लूंगा, प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट लूंगा,
बिफोर हीटिंग, उसका मास वे करूंगा, जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली वो ग्राम में होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा मैं बॉइलिंग ट्यूब और हाइड्रेटेड सॉल्ट को, और हीट करने के बाद उसका मास रीवे करूंगा। तो मास ऑफ बॉइलिंग ट्यूब प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट है ये बेसिकली, तो मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट लिख रहा हूँ आफ्टर हीटिंग, और ये फर्स्ट टाइम हीटिंग करें तो आफ्टर फर्स्ट हीटिंग कर देते हैं। ये स्लैश ग्राम हो गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद दोबारा से हीट करेंगे, आई मीन रीहीट करेंगे, और रीहीट करने के बाद दोबारा से रीहीट करेंगे, और वो सेकंड टाइम रीवे कर रहे होंगे आप। तो मास ऑफ बॉइलिंग ट्यूब प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट आफ्टर सेकंड हीटिंग स्लैश ग्राम। ठीक है, और भाई ये बार बार हीटिंग क्यों कर रहे हैं, पहले हीटिंग करी, कूल किया, फिर दोबारा से रीहीट किया, रीवे किया, क्यों? टू गेट द कंसिस्टेंट रिजल्ट, टू गेट द कांस्टेंट मास। सो हीट करोगे until constant mass is obtained, and that shows कि जी सारा का सारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सही है, इसलिए हमने फर्स्ट टाइम हीटिंग की तो उसको मेंशन किया, सेकंड टाइम हीटिंग की तो उसको मेंशन किया। ये वो आपसे मेजरमेंट्स मांग रहे थे, मैंने मेजरमेंट्स दे दी। लेकिन अगर एग्जामिनर लेट सपोज आपसे प्रोसेस करने के लिए कह दे, कैलकुलेशन करने के लिए कह दे, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैं कैलकुलेशन का भी यहाँ आइडिया दे देता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द यू नो क्वेश्चन, बट मैं फिर भी दे रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन कैसे करोगे। जाहिर सी बात है, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है ना, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। किधर गया? यस, ये वैल्यू निकालनी है मैंने। इस वैल्यू को निकालने के लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन का भी क्राइटेरिया समझा देता हूँ, वो पूछ नहीं रहे। यहाँ पर खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन, आई एम डन विद द पेपर, बट ये मैं कैलकुलेशन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहला काम मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट डिटरमिन करूंगा, एनहाइड्रस एसिड सॉल्ट। ठीक है, और इसको डिटरमिन करने के लिए क्या करूंगा भाई, एनहाइड्रस सॉल्ट डिटरमिन करना है, तो ये आपके पास है मास ऑफ बॉइलिंग ट्यूब प्लस ओके, सो अगर मुझे मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट निकालना है, तो मैं इस फोर्थ को और इस फर्स्ट को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर तो रिमूव हो चुका होगा, तो ये हो जाएगा 4-1/ग्राम। ओके, सिमिलरली अगर मुझे मास ऑफ वाटर डिटरमिन करना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो जाहिर सी बात है, मैं एक्सपेरिमेंट 4 और एक्सपेरिमेंट 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास वाटर का मास आ जाएगा। तो 4-2/ग्राम, तो यहाँ से मास ऑफ वाटर आ गया, यहाँ से मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं मोल्स ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट निकालूंगा, और उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मास आया है 4-1, उसको डिवाइड कर दूंगा इस सॉल्ट के एमआर से, तो मोल्स आ जाएंगे। सही है, फिर इसी तरह से मैं मोल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करूंगा, और मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए जो मास आया है मेरे पास वाटर का, जिसको मैंने 4-2 से डिटरमिन किया है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 18 से। ठीक है, फिफ्थ स्टेप। अब क्या होगा कि मेरे पास सॉल्ट के भी मोल्स होंगे, और मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर भी होंगे, इन दोनों का रेशियो लूंगा।
रेशियो थ्रू सिंपलेस्ट रेशियो लूंगा मैं, simplest ratio through simplest ratio through empirical formula। सही है। तो मेरे पास जाहिर सी बात है, ये मेरे पास सॉल्ट के मोल्स आ जाएंगे, ये सॉल्ट का रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर आ जाएगा रेशियो ऑफ वाटर, एंड ऑब्वियसली ये मेरे पास डी की वैल्यू हो जाएगी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस।